एक बार फिर आपको पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की जानिब लिए चलते हैं। निसार चाइना पर है, सीपैक को गो स्लो करें और अमेरिका जो है हमारे सारे मसले हल कर देगा कि जो अमेरिकन एम्ब्रेस है, this new flirtation with the United States, this will really solve our problems. And suddenly we were all rushing to Washington, we were all starry-eyed about Washington, about United States, about Trump कि ये हमारा issues हमें आगे लेके चलेंगे और हमने चाइना को secondary position पर, we even relegated China's strategic relationship as an iron brother to appease, to woo, to acclaim the United States. और ये कितनी बड़ी miscalculation थी. This is because this is also against the national interest. अभी भी, and I think President Zardari was right कि Chinese would be very upset, and so was Senator Raza Rabbani कि on this issue we shared strategic data on CPEC with the IMF, जो उनकी conditionalities थी. And we thought that United States is the person. और मैंने हमारे सिस्टम में, हमारे क्वार्टर्स में काफी बातें सुनी कि सीपैक और ठीक है जी, जो जितना हो गया अब छोड़ो, आगे चलो, अमेरिकनों से बड़ी यारी दोस्ती हो रही है, ये हमारा काम चलाएंगे. इस किस्म की स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन इज appalling, is shocking, and it is contrary to the national interest. But ये हमारे सिस्टम में हुआ. मिस्टर चेयरमैन, हमारे यहाँ क्राइसिस आए हैं. कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं और मेरी पार्टी इस मसले को हल करेंगे. I'm sorry, no one person, no one leader, no one government, no one institution alone can do it. It has to be collective. आप तारीख की बात करते हैं, पाकिस्तान की तारीख देखें. 4:15. This time check is brought to you by Pepsi Sava. Sava है सोनिया. Before going to Simla, Mr. Bhutto, as Prime Minister, was in Murree. He was receiving delegation after delegation, including students. मैं याद था, मैं स्टूडेंट था एफसी कॉलेज के, हमें मिले लेबर लीडर्स, हर पॉलिटिकल पार्टी, सिविल सोसाइटी, सबको कंसल्ट किया. Then he went with a strong hand, and when he came back, he got the endorsement of Simla through the parliament, through the people of Pakistan. 1998, the nuclear tests. That was the finest hour. There was Prime Minister Mohammad Nawaz Sharif. And it was a very difficult decision. और ये decision उनका था, एक civilian prime minister का खुद फैसला था, along with the people of Pakistan. उनको कोई pressure नहीं था establishment का. 3 services chief में से एक ने मुखालफत की और एक ने support किया और एक neutral था. उन्होंने कहा आप फैसला करें. उन्होंने क्या किया? And that was the finest hour because we took the most difficult decision on national security in the history of Pakistan, through consensus, through the support of the people of Pakistan, despite the pressures from the United States and other countries. उन्होंने clearly कहा, हर एक political party से consult किया, हर एक के साथ मशवरा किया, civil society से. I was then a minister. We went to different political leaders. We talked to people also. And जब consensus हो गया within parliament, outside parliament, among the people of Pakistan, then we went through with it. तो ये डिसीजंस होते हैं. नाउ मिस्टर चेयरमैन, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? हमें क्या करना चाहिए? बिकॉज वी आर रियली एट अ डिफिकल्ट सिचुएशन. सिवाय चाइना के एंड प्रेसिडेंट एर्दोगान ऑफ टर्की, किसी ने पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं की. वी सल्यूट द पीपल ऑफ चाइना. उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, उनके अनएक्सेप्टेबल डिसीजन है. वी सल्यूट प्रेसिडेंट एर्दोगान, उन्होंने क्लियर सपोर्ट की है. एंड वी होप अदर कंट्रीज विल ऑल्सो सपोर्ट. बट 3 चीजें बड़ी जरूरी है मिस्टर चेयरमैन. नंबर 1, डिप्लोमेसी के हवाले से ये सिर्फ सरकारी लोग नहीं काम कर सकते. इट हैज टू बी बियॉन्ड द फॉरेन मिनिस्ट्री. और जैसा रजा रब्बानी साहब ने कहा, आई वुड एंडोर्स व्हाट ही हैज सेड. आई वुड आल्सो से दैट वी शुड डिक्लेयर ए डिप्लोमेटिक इमरजेंसी फॉर द नेक्स्ट 100 days. और कोई काम फॉरेन ऑफिस कोई ना करे. वी शुड इमीडिएटली रिकॉल our High Commissioner from Delhi, and we should send the Indian High Commissioner in Islamabad packing home. अब इसमें कोई गुफ्तगू फिलहाल नहीं हो सकती फॉर द नेक्स्ट 100 days. और ये जो 3 कमेटीज हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कश्मीर, सेनेट फॉरेन अफेयर्स कमेटी जिसका मैं चेयरमैन हूं, नेशनल असेंबली फॉरेन अफेयर्स कमेटी, इन तीनों कमेटीज के जरिए एक कश्मीर के ऊपर पार्लियामेंट्री टास्क फोर्स फॉरेन कॉन्स्टिट्यूट की जाए. एंड दे शुड फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट a strategy through parliamentary diplomacy, which is today a very effective tool. जब चेयरमैन सेनेट थे रजा रब्बानी साहब, उन्होंने अप्लाई की थी ये टूल इन द एशियन पार्लियामेंट्री असेंबली. दैट शुड बी यूटिलाइज्ड. सो नंबर 1 इज डिप्लोमेसी. दूसरा सर, वी हैव टू वर्क इट आउट, इज दैट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, he should pick up the phone, call the UN Secretary General.
UN Security Council जाएं आप, उसकी वायलेशन हुई है. He should call his new friend President Trump. उनको कहें कि आपने तो कहा था 2 मरतबा कि आपसे ये सारा करेंगे, and we would like what role US can play, and our support for the Afghan peace process is not unconditional. अगर एक तरफ हमें प्रेशर है ईस्टर्न फ्रंट में, what can we do on the western front on Afghanistan? And this, as the leader of the opposition, Mr. Shahbaz Sharif, also said that the Afghan peace process is now linked with what is happening on the eastern front on Kashmir. जब तक ये मसले भी हल नहीं होते, तो we cannot give unconditional support because our attention is focused on this thing. And the third most important thing, Mr. Chairman, what needs to be done is Pakistan needs a healing touch. ये जो है वन साइडेड इश्यूज चल रहे हैं, प्रेशर्स ऑन द ऑपोजिशन चल रहे हैं, और जब तक हमारे मुल्क के अंदर कंसेंसस नहीं होगा. कल आपने देखा क्या हुआ, इस्लामाबाद के अंदर बैनर्स लग गए अखंड भारत के, 10 घंटे बैनर्स लगे रहे, और फिर बाद में होश आई इनको, रातों रात लग गए. इसका मतलब इस्लामाबाद के अंदर रॉ एजेंट्स मौजूद हैं. I want to ask, what is the Ministry of Interior doing other than tapping the telephones of opposition leaders? ये काम है उनका, और जो असली काम है लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी, वो तो काम हो नहीं रहा. और उसके अलावा मैं समझता हूं कि हीलिंग टच में आप सबको साथ लेके चलें. हम मुल्क को तकसीम ना करें कि फलाना गद्दार है, फलाना गद्दार. अब देखिए जी, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के 2 MNAs should have been here. मोहसिन दावर एंड अली वजीर should have been here. उनको रिहा किया जाए. पीसफुल एक्टिविस्ट, उनका क्या कसूर है? इस किस्म की जो पॉलिसीज हैं, अच्छी बात है, जो असीर लोग हैं उनको लाए गए. राना सनाउल्लाह शुड हैव आल्सो बीन ब्रॉट टू द पार्लियामेंट, शाहिद खाकान शुड हैव आल्सो बीन ब्रॉट टू द पार्लियामेंट. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. और अगर सेंसरशिप लगानी है, मरियम नवाज पर तो सेंसरशिप लगी हुई है, उसकी तकरीर बंद हो जाती है, इतने बड़े बड़े जलसे दिखाई नहीं देते. चाइना के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, उसके खिलाफ तो सेंसरशिप कोई नहीं है, वो इजाजत दी जा रही है. ये किस लॉबी के और किस इमा के किया जा रहा है? तो वी शुड बी वेरी क्लियर फॉर द फ्यूचर. Thank you, Lines are being Nishad drawn, Saab. Wind up. and Mr. Chairman, I feel that the time has come that we should be giving full support to CPAC as the way forward. या CPAC के खिलाफ भी साजिश की गई थी. पहले कुछ लोग जो समझते थे ट्रंप ने आंख मारी है और मोदी साहब से मिलके हम करेंगे. Our future belongs to Asia. It's the Asian century. It belongs to our relationship with China, and we must preserve, promote, and protect CPAC also. And no one institution can do it. And Parliament should play the lead role in protecting Pakistan's interests.